tissue, nervous tissue, and the muscular tissue. ठीक है जी. So it is one of the basic tissues of the human body, and the subunit or the primary basic unit is a muscle fiber or a myocyte. To define a band, a bundle of fibrous tissue in the human body, as well as it can be seen in the animals. So that to complete the definition, in human or animal body which has the ability to contract, with the contraction क्या होगा, मूवमेंट प्रोड्यूस करनी है. और मूवमेंट किस लिए करनी है, ताकि एक से दूसरी जगह जो अपनी पोजीशन चेंज करनी है उसके लिए, and also to maintain the posture of the human body. So to define a muscle, it is a band or bundle of fibrous tissue present in the human or the animal body with the characteristic to contract, produce movement, and help in maintaining the position or posture of the body parts. Now, briefly about the functions of the muscle. What would the muscles do? Production of movement, and that will be done by the mechanism of contraction. Contract करेंगे, relax करेंगे, उसकी मदद से movement possible है, flexion extension होगी, चल सकते हैं या मुड़ सकते हैं. फिर जो axial skeletal का musculature है, that with the help by the process of contraction helps in maintaining the erect posture of the body. जिस वक्त bend करना है तो उसमें भी these skeletal muscles would be involved. Then in order to maintain the body temperature, especially in the cold environment, that is the function is the heat production, and that is achieved by the shivering or the rapid contraction and relaxation of the muscles. जिस वक्त आपने डेली लाइफ में देखा होगा कि जिस वक्त बहुत ज़्यादा सर्दी एरिया में जाते हैं, इस ठंड में हो तो शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है. सो दैट हेल्प्स, दैट इज अ नेचुरल मैकेनिज्म ऑफ द ह्यूमन बॉडी to produce heat and maintain the body temperature. And these are voluntary as well as involuntary contractions of the skeletal muscles. इसके अलावा और क्या फीचर्स होंगे? They should be excitable, which means in response to a nerve action potential, the muscles contract and produce and help in the movement or change in the posture. और जब एक्साइटेबिलिटी होगी तो उससे ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो मूवमेंट प्रोड्यूस करेंगे. एक चीज आपने और याद रखनी है कि मसल्स शुड हैव द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. अगर कॉन्ट्रैक्ट करके उसी पोजीशन में फिक्स हो गए तो मूवमेंट तो नहीं हो सकती. सो दिस शुड बी एक्सटेंसिबल. If the extra load or extra pressure is applied to them, they stretch out without damaging themselves, and the elasticity to regain their normal length and normal position and posture. So depending on the location, we are not talking about the histological aspect. Depending on their location, there are of three types: smooth muscles, skeletal muscles, and the cardiac muscle. कार्डियक मसल जो है वो स्पेसिफिकली हार्ट में ही होंगे, इसके अलावा बॉडी में कहीं पे भी नहीं मिल सकते. जो स्केलेटल मसल हैं, दे आर प्रेजेंट इन द विद द लॉन्ग बोन एंड द स्केलेटन ऑफ द बॉडी. और जो स्मूथ मसल्स हैं विच आर इनवॉलेंट्री, जो कि ऑटोनॉमिक फंक्शन ऑफ द बॉडी है उसको कर रहे होते हैं. सो उनकी अपनी लोकेशन फर्क है. Now we will be seeing one by one the characteristic of each muscle: smooth muscle, cardiac muscle, and the skeletal muscle. जो smooth muscles हैं उनको smooth नाम हम दे रहे हैं because of their homogeneous appearance, which are non-striated under microscopic image. ठीक है जी. फिर उसके बाद और क्या होगा? शेप इनकी फ्यूजिफॉर्म होगी या स्पिंडल शेप होंगे. न्यूक्लियस वुड बी इन द सेंटर ऑफ द सेल, और एक ही होगा हर सेल के अंदर. ठीक है जी.
अगर हम इसको स्केलेटल मसल से या सार्कोप्लाज्म सार्कोमेयर से कंपेयर करते हैं तो जो सार्को अच्छा, इससे पहले एक चीज और हम देख लें कि there are specific terms that are specifically used for the certain areas of the muscle. जैसे अगर सार्कोप्लाज्म हम कह रहे हैं, so that is the cytoplasm of the muscle. सार्कोलेमा कहेंगे तो सेल मेम्ब्रेन ऑफ द मसल हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा जी, सार्कोप्लाज्म में क्या होगा कि जो फाइबर्स हैं दे आर arranged longitudinally which have the ability to contract, और मायोफिब्रिल्स या मायोफिलामेंट्स इसके एग्जांपल हैं। और इनकी क्या फीचर है कि दी स्मूथ मसल्स डू नॉट गेट फटीग्ड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हुए वो फटीग हो जाएं और काम छोड़ दें। स्मूथ मसल्स हैव दे आर स्लो टू कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन वो फटीग नहीं होती। फिर एक और चीज जो हमने कहा था कि लोकेशन के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, तो स्मूथ मसल्स विल नॉट बी अटैच्ड टू एनी बोनी स्ट्रक्चर। होलो विस्टरास जो हैं, जिस तरह गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम को देखते हैं तो एसोफेगस हो गया, उसका स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन्स हो गई, ये सारे अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और इनकी कोई बोनी अटैचमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद अब जब ये अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं है तो इनका कंट्रोल किसी और चीज में करना है, सो दैट वुड बी बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का जो इफेक्ट होगा वो फर्क हो जाएगा, लेकिन वो अपनी वॉलेंट्री विल के अंडर कंट्रोल नहीं होंगे। अच्छा जी, अगर आप ये दो इमेजेस देखते हैं स्मूथ मसल के, जो लेफ्ट साइड पे है दैट इज अ रिलैक्स मसल जिसकी लेंथ ज्यादा है, थिकनेस कम है, एंड व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स इट शॉर्टन्स आउट, थिकनेस ज्यादा हो जाती है, न्यूक्लियस सेंटर में ही रहता है। ठीक है जी। अगर इसको हम एक थोड़ा सा ब्रीफली अभी हम जबानी कंपेयर कर देते हैं, आगे जैसे स्केलेटल मसल आएगा उसका हम स्ट्रक्चर भी देख लेंगे। तो स्केलेटल मसल में प्रॉपरली लॉन्गिट्यूडनली अरेंज सार्कोमेयर्स होते हैं। ठीक है जी। लेकिन जब ये हम बात करेंगे स्मूथ मसल्स की, तो इन्होंने लेंथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, दे हैव टू कॉन्ट्रैक्ट इन द ऑब्लिक एक्सिस। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये होगा कि जो इसके कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट हैं, एक्टिन और थिक और थिन फिलामेंट्स हैं, ये ऑब्लिकली अरेंज्ड होंगे। जैसे यहाँ पे आप देखते हैं कि these striations और क्रॉस बेंडिंग्स दे आर शोइंग और इंडिकेटिंग द लाइन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है जी। फिर क्या होगा कि ऑब्लिकली होंगे तो इनकी कॉन्ट्रैक्शन थिकनेस ज्यादा हो जाएगी, और जब ये रिलैक्स होंगे तो लेंथ ज्यादा हो जाएगी मसल की। फिर अब जब ये फाइबर्स ऑब्लिकली पड़े हुए हैं तो इनको कहीं तो जोड़ना है सेल मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है जी। So the specialized structures that are meant for the attachment of these thick and thin filaments in the smooth muscles are the dense bodies. Dense bodies सेल मेम्ब्रेन पे भी होती हैं और कुछ लूजली विद इन द साइटोप्लाज्म भी हो सकती हैं। ठीक है, so ये oblique fusiform shaped cells हैं with a single nucleus. Dense bodies इनका characteristic feature है that is present on the cell membrane, and these fibers are attaching in the oblique pattern. ठीक है, ये डेंस बॉडीज क्या होगी कि जी हमने बात की कि वो मेम्ब्रेन पे भी हो सकती हैं और साइटोप्लाज्म के अंदर भी हो सकती हैं। ठीक है, और इनका काम क्या होगा, दे एक सिमिलर टू दैट ऑफ जेड लाइंस ऑफ द सार्कोमेयर। जेड लाइंस क्या करती थी, एक सार्कोमेयर से दूसरे की जो डिमार्केशन बाउंड्री है वो जेड लाइन है। सो सिमिलरली जो डेंस बॉडीज हैं स्मूथ मसल में, दे वुड बी एक्टिंग एज द जेड लाइंस। अच्छा जी, अब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कैसे करना है कि अगर हम बात करते हैं स्केलेटल मसल की तो वहाँ ट्राइएड होता है। ठीक है जी, टीटीब्यूल है, दोनों तरफ सार्कोमेयर है। कार्डियक मसल की हम बात करते हैं तो वहाँ पे डाइएड है कि टीटीब्यूल है और एक तरफ सार्कोमेयर आएगा। लेकिन स्मूथ मसल के अंदर से टीटीब्यूल सिस्टम तो कुछ भी नहीं है, तो जो कैल्शियम होगा इन द सराउंडिंग दैट वुड इनफ्लक्स इनटू द सेल्स। ठीक है, एंड दैट वुड इनिशिएट द मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। मायोसिन और एक्टिन का इंटरेक्शन सिर्फ तब होगा
जब फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी मायोसिन प्रेजेंट ऑन द लाइट चेन्स। ठीक है जी। फिर एक्टिवेशन ऑफ लाइट चेन्स के लिए जो एंजाइम जरूरी है वो काइनेज है, जो कि फॉस्फोराइलेशन को भी इनिशिएट करेगा। यहाँ पे अब कैल्शियम कैलमोडुलिन कॉम्प्लेक्स बनता है, ये स्पेशल स्ट्रक्चर है विच इज ओनली प्रेजेंट इन द स्मूथ मसल्स। ठीक है जी। तो ये हमने बात कर दी कि जी ये जितने भी ट्यूबुलर ऑर्गन्स हैं या हॉलो विस्ट्रास हैं, जैसे यूरिनरी ब्लैडर हो गया, इंटेस्टाइनल सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम सारा हो गया, एसोफेगस, स्टमक, ड्यूडेनम, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, वो सारी ट्यूबुलर ऑर्गन्स हैं। इसी तरह यूरेटर है, फैलोपियन ट्यूब्स हैं, इन सब के अंदर स्मूथ मसल्स होंगे। और इन्हीं के साथ में ये वैसे बताया हुआ है कि जी ब्लड वेसल्स की वॉल में भी स्मूथ मसल्स होंगे, इंटेस्टाइन्स में भी होंगे, यूरेटर में भी होंगे, और बाकी जो हमने एग्जांपल्स कह रहे हैं सब जगह पे दीज आर द हॉलो ट्यूबुलर ऑर्गन्स जिनकी दीवारें बनी होती हैं स्मूथ मसल से विदाउट एनी बोनी अटैचमेंट। अब इसी को हम कंपेयर करते हैं स्केलेटल मसल से। अगर अंदर अंडर माइक्रोस्कोप उसकी अपीयरेंस देखते हैं तो वहां पे क्रॉस स्ट्राइएशन के बैंड्स नजर आते हैं, तो इसलिए हम इसको स्ट्राइएटेड मसल कह देते हैं। ठीक है। अब फर्क ये होगा कि स्केलेटल मसल्स आर सिलेंड्रिकल, जबकि स्मूथ मसल कैसे थे? दे आर Sir, fusiform shape, फ्यूजिफॉर्म spindle शेप। shape. वेरी वेरी गुड, स्पिंडल शेप और फ्यूजिफॉर्म, ये एक डिफरेंस आ गया। फिर सेकेंडली हमने कहा था कि जो स्मूथ मसल है उसका एक न्यूक्लियस होगा और सेंटर में होगा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं स्केलेटल मसल की, सो दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है। और इसकी लोकेशन होगी जस्ट बिलो द सेल मेम्ब्रेन, सार्कोप्लाज्म के सार्कोलेमा के बिल्कुल नीचे, सब सार्कोलेमल इनकी अरेंजमेंट होती है। मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गए और पेरिफेरल न्यूक्लियाई हो गए, विच इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ स्मूथ मसल। स्मूथ मसल में सेंटर में था। थिकनेस सिलेंड्रिकल है तो सेम रहेगी, दैट रेंजेस फ्रॉम 10 टू 100 माइक्रोन मीटर्स। और इनकी लेंथ वेरिएबल होगी कि जी कुछ मसल्स जो हैं वो दैट comprise of few millimeters and they can extend to centimeters as well। ठीक है जी। अब ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कैसे बन गया? बॉडी के अंदर तो जितने भी सेल्स जो कुछ बनता है वो तो सारे अलग अलग सेल ने एक एक न्यूक्लियस है, लेकिन ऐसा क्या होगा कि जिसकी वजह से skeletal muscles become elongated and multinucleated? ठीक है जी। अब उसमें अगर आप एम्ब्रियोलॉजी से बात करते हैं तो मीसेनकाइम से मायोब्लास्ट सेल्स बनेंगे। ठीक है। और मल्टीपल हर मायोब्लास्ट सेल जो है विच इज द प्रिकर्सर सेल ऑफ द स्केलेटल मसल, वो मोनोन्यूक्लियर ही है, लेकिन मल्टीपल मायोब्लास्ट फ्यूज्ड और मर्ज टुगेदर, तो जब वो मर्ज करेंगे तो एक लंबी ट्यूबुलर चेन बन जाएगी। आगे हम देख लेते हैं। ठीक है जी। तो उससे क्या होगा कि वो मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो जाएंगे, उनकी लेंथ भी बढ़ गई एज कंपेयर टू द सिंगल मायोसाइट। ठीक है जी। ठीक है। और उसमें फिर हो जाएगा कन्वर्जन ऑफ मायोफाइबर्स, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल सिलेंड्रिकल मसल सेल्स बन जाएंगे। जो इसके कवरिंग मेम्ब्रेन है दैट इज सार्कोलेमा ऑन द सरफेस। ठीक है जी। अच्छा जी। और इसके अंदर जो स्ट्राइएशंस हैं वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड्स हैं, वो आगे हम देख लेते हैं कि वो क्यों है। ठीक है जी। फिर उसके बाद जो इसकी रेडिश अपीयरेंस आती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मायोग्लोबिन। अगर ब्लड की हम बात करते हैं तो वहाँ हीमोग्लोबिन था। ग्लोबिन प्रोटीन अगर मसल्स में है तो मायोग्लोबिन है, अगर वो ब्लड सेल्स में है तो हीमोग्लोबिन है। ठीक है जी। उसके बाद दो तरह के फाइबर्स आएंगे इसमें, क्विक फास्ट फाइबर्स होंगे और स्लो फाइबर्स होंगे। जो स्लो फाइबर्स हैं स्मूथ मसल की तरह वो स्लो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और इतनी जल्दी फटीग नहीं होंगे, लेकिन जो फास्ट फाइबर्स हैं जो जैसे ही नर्व इम्पल्स आए वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, फौरी तौर पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सो दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रैक्शन एंड दे गेट क्विकली और अर्ली फटीग्ड। ये सुपरफिशियल लेयर में होंगे जो क्विक फास्ट फाइबर्स हैं, और जो स्लो मसल फाइबर्स हैं दे विल बी इन द डीपर लेयर।
और इनकी फिर इनोवेशन कहाँ से आनी चाहिए? हमने इस बात की कि जो स्मूथ मसल्स हैं विच आर नॉट अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल, उनके तो इनोवेशन आ रही थी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। ये तो अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल है स्केलेटल मसल्स, so they would be innervated by the cranial cranial and spinal nerves. and spinal nerves। ठीक है जी। अच्छा जी। और अगर किसी मसल की इनर्वेशन स्केलेटल मसल की खत्म हो जाएगी, so that would get paralyzed, और जब पैरालिसिस हो जाएगा तो मसल would get non functional and ultimately because of non usage it atrophies or dies out। अच्छा जी। अब हम कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट की बात कर लेते हैं कि स्केलेटल मसल के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट है क्या। दो तरह के फाइबर्स हैं, एक थिक है और एक थिन है। जो थिक फाइबर्स है वो मायोसिन है और जो थिन फाइबर्स है वो एक्टिन है। ये साइड बाय साइड एक दूसरे के ऊपर नीचे पड़े हुए हैं। ठीक है जी। तो ओवरलैप, और जो सार्कोमेयर है बेसिक कंट्रेक्टाइल यूनिट है। एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन के दरमियान जितना भी डिस्टेंस आएगा वो सारे का सारा सार्कोमेयर है। और sarcomere will be seen both in the cardiac muscle as well as the skeletal muscle। अच्छा जी। अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि दिस इज द कंपैरेटिव डायग्राम ऑफ द थ्री टाइप ऑफ मसल। स्केलेटल की अगर हम बात करते हैं तो ये एक स्ट्राइएटेड अपीयरेंस दे रहे, लाइट और डार्क बैंड्स हैं, और इनके पेरिफेरी पे मल्टीपल न्यूक्लियाई हैं एक मसल हर फाइबर के अंदर। इसको अगर आप कंपेयर करते हो कार्डियक मसल से, है तो वो स्ट्राइएटेड, नॉन वॉलेंट्री है। ठीक है जी, क्योंकि हार्ट ने अपनी रिदम पे खुद ही कॉन्ट्रैक्ट करना है, वो हमारी मर्जी पे नहीं कर रहा कि जी अब धड़कना है अब नहीं धड़कना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है नहीं करना। दैट इज नॉट अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल। ठीक है जी। फिर उसके बाद जो स्केलेटल मसल्स थे वो नॉन ब्रांचिंग है। कार्डियक मसल्स की जब हम बात करेंगे तो उसमें ब्रांचिंग पैटर्न आ जाएगा। कार्डियक मसल के अंदर न्यूक्लियस जो वो सिंगल होगा हर सेल के अंदर, और सेंट्रल होगा एज दैट ऑफ स्मूथ मसल। ठीक है जी। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज है कि ये ब्रांचिंग पैटर्न भी आ गया तो उसमें नर्व इम्पल्स कैसे पास करेगी। सो देयर आर स्पेशलाइज्ड एरियाज दैट आर इंटरकलेटेड डिस्क्स, जो कि स्पेसिफाइड हैं फॉर द कार्डियक मसल। आगे हम जब कार्डियक मसल डिस्कस करते हैं इसका स्ट्रक्चर भी आ जाएगा। और इसी को जब आप कंपेयर करते हैं विद द स्मूथ मसल्स लोअर मोस्ट डायग्राम, तो ये स्पेंडल शेप मसल्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं, विच आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू वन अनदर, लेकिन लेयर्स में पड़े हैं तो वो जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट एक ही काम करेंगे, सो दे फंक्शन एज अ सिंगल यूनिट। इनकी ब्रांचिंग कोई नहीं है, स्ट्राइएशन कोई नहीं है, और न्यूक्लियस इनका सेंटर में है। अच्छा जी। दिस इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सार्कोमेयर। ठीक है जी। हमने कहा था कि जो एक्सटेंट है सार्कोमेयर की एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन तक है या जेड डिस्क तक है। इसी के अंदर एक्टिन फाइबर्स होंगे, इसी के अंदर मायोसिन फाइबर्स होंगे। तो इसके अंदर जब हम इस स्लाइड में देखते हैं, इस डायग्राम में अगर आप देखते हो तो मुख्तलिफ एरियाज नजर आ रहे हैं। एक एरिया जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये रेड फाइबर्स हैं। एक एरिया आ गया जिसके अंदर दोनों रेड और ये ब्लू फाइबर्स हैं, एक्टिन मायोसिन दोनों है। और एक एरिया आ गया जहां पर सिर्फ और सिर्फ थिन फिलामेंट्स हैं। ठीक है जी। तो जब ये अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे तो इनकी अपीयरेंस और स्टेनिंग और विजुअलाइजेशन फर्क होगी। ठीक है। सो इनको आगे हम नाम देते हैं। जहां पे सिर्फ और सिर्फ थिन फिलामेंट्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम द जेड डिस्क टिल द थिक फिलामेंट्स, ये होमोजेनस अपीयरेंस देंगे, सो दे आर कॉल्ड आइसोट्रोपिक बैंड और आई बैंड। ठीक है जी। फिर उसके बाद ए बैंड कहां से कहां तक होगा, दैट इज हैविंग बोथ एक्टिन एज वेल एज मायोसिन फिलामेंट्स। और उसको ए बैंड इसलिए कह रहे हैं कि दैट गिव्स अ वेरिएबल इमेज कि उसमें थिक फिलामेंट्स भी हैं थिन भी हैं, सो दैट वुड बी एन आइसोट्रोपिक बैंड दिस रीजन। ठीक है जी। सेंटर पॉइंट ऑफ थिक फिलामेंट्स है वो एम लाइन है। ठीक है जी। और एच जोन कौन सा होगा, आई बैंड हो गया जिसमें सिर्फ थिन फिलामेंट्स हैं। एन आइसोट्रोपिक है ए बैंड हो गया जिसके अंदर थिक और थिन दोनों हैं।
एम लाइन सेंटर ऑफ द थिक फिलामेंट्स है, ये सार्कोमेयर है। जेड डिस्क सार्कोमेयर की दोनों एक्सटेंट्स हैं, ठीक है। फिर एक ऐसा जोन भी आ रहा है जो रिलैक्स फॉर्म में, कि जहां पे सिर्फ थिक फिलामेंट्स हैं, थिन नहीं आ रहे, सो दैट इज एन एच जोन, जहाँ पे थिक फिलामेंट्स हैं सिर्फ, ठीक है। अब जब सार्कोमेयर ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो द लेंथ ऑफ दीज फाइबर्स थिन एंड थिक दे रिमेन द सेम, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। उससे क्या होगा कि व्हेन इट बिकम्स कॉन्ट्रैक्टेड, तो आई बैंड खत्म हो जाएगा, एच जोन खत्म हो जाएगा, सारे का सारा ए बैंड रह जाएगा, एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन तक, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर पहले इस तरह थे, ठीक है जी। फिर क्या हुआ कि जैसे कॉन्ट्रेक्शन शुरू हुई, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गए, तो सार्कोमेयर की लेंथ कम हो गई, और क्या हुआ, आई बैंड जो था जिसमें सिर्फ थिन फिलामेंट्स थे वो खत्म हो गए, इसी तरह एच जोन जो था जहां पर सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट्स थे वो एरिया खत्म हो गया, एक्टिन और मायोसिन सारे के सारे रीजन में ओवरलैपिंग कर गए, ठीक है जी। और एक्टिन और मायोसिन के आपस में जो कनेक्शन बनना है, दैट इज बाय दीज डायनिन आर्म्स। अच्छा जी, ये कौन सा मसला आप, दिस इज a histological image of skeletal muscle। ये एक ही जो आपको बैंड नजर आ रहा है, दिस इज अ सिंगल सिलेंड्रिकल मसल, और इसके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियर पड़े हुए हैं, स्ट्राइएटेड अपीयरेंस है, ठीक है जी। अगेन skeletal muscle which is striated multinucleated, the nuclei are located just below the cell membrane subsarcolemmal। ये उसका ट्रांसफर सेक्शन आ गया, न्यूक्लियर मल्टीपल हैं और पेरिफेरी पे होंगे, सेंट्रल एरिया में कोई भी न्यूक्लियस नहीं होगा। अच्छा जी, नाउ वी कंपेयर इट विद द कार्डियक स्ट्राइएटेड मसल। स्ट्राइएटेड है, नॉन वॉलेंट्री है, प्रेजेंट ओनली इन द कार्डियक टिश्यू, हार्ट मसल, ठीक है। सिमिलर टू स्केलेटल मसल है क्योंकि स्ट्राइएटेड अपीयरेंस है, और डिफरेंस इसलिए कि न्यूक्लियस सिंगल है, सेंट्रल है, ब्रांचिंग पैटर्न आ रहा है, इनके अंदर इंटरकैलेटेड डिस्क आती है, इसको हमने बात की थी। न्यूक्लियस मिडलाइन में है, सार्कोलेमा सेल सेल मेम्ब्रेन है, कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट इसको कंट्रोल करेगा, एंड दैट विल बी फर्दर कंट्रोल्ड बाय द ऑटोनॉमिक सिस्टम, बोथ सिंपैथेटिक एज वेल एज द पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देख लें कि दीज आर द इंटरकैलेटेड डिस्क्स, ठीक है। आप यहाँ पे देखते हो, इस इमेज में देखते हैं इस रीजन में, सो इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक वर्टिकल कंपोनेंट है। सो जब हम बात करते हैं कि अपीयरेंस ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क, तो हमें कहते हैं कि इट हैज अ स्टेप लैडर पैटर्न, जिस तरह सीढ़ी होती है, कि अगर हॉरिजॉन्टल पार्ट, वर्टिकल पार्ट, हॉरिजॉन्टल पार्ट, वर्टिकल पार्ट, हॉरिजॉन्टल पार्ट, वर्टिकल पार्ट, ठीक है जी, इस तरह ये आपस में जुड़े हुए होंगे। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है दोनों एरियाज की, कि इन जंक्शंस ने सेल्स को आपस में जोड़ के भी रखना है, and also they have to help in the propagation of action potential, ठीक है जी। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, that will have gap junctions, ठीक है जी। गैप जंक्शंस क्या कर देंगे, they provide an easy movement of the ions for the propagation of the nerve impulse, ठीक है। और जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, they will have desmosomes which are connecting the two cells together by the tight junctions। फिर हॉरिजॉन्टल पार्ट में गैप जंक्शन आ जाएगा, और वर्टिकल पार्ट में डेस्मोसोम्स आ जाएंगे विच आर कनेक्टिंग द और बाइंडिंग द टू एडजेसेंट सेल्स टाइटली, ठीक है जी। सो दिस इज द मेन स्ट्रक्चर और अपीयरेंस ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क। स्टेप लेटर पैटर्न आपने याद रखना है, दो तरह के जंक्शंस हैं, हॉरिजॉन्टल पार्ट में गैप जंक्शंस हैं, वर्टिकल पार्ट में डेस्मोसोम्स हैं विच आर द टाइट जंक्शंस। अच्छा जी, ये हमने बात कर दी कि ट्रांसवर्स पोर्शन और लेटरल पोर्शन है, ठीक है जी, हमने बात कर दी है। अब ये हिस्टोलॉजिकल इमेज आ गया कार्डियक मसल का। नेक्स्ट वुड बी मोर क्लियर,
अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देख लें कि एक तो न्यूक्लियस सेंट्रल पड़ा हुआ है, इस तरह मल्टी न्यूक्लिएटेड अपीयरेंस नहीं है और सेंटर में। सेकेंडली, ये जो आपको डार्क लाइंस नजर आ रही हैं, दीज आर द इंटरकलेटेड डिस्क्स। ठीक है, इसको ज्यादा मैग्नीफाई करेंगे तो वो, ये अल्ट्रा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में जाएंगे तो वो स्टेपलर अपीयरेंस देगा, लेकिन सिंपल लाइट माइक्रोस्कोपी में इट अपीयर्स एज अ डार्क बैंड एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द कार्डियक मसल सेल्स। अच्छा, अब ये दिखाया हुआ है कि जी स्केलेटल मसल फाइबर मल्टी न्यूक्लिएटेड कैसे हुआ, कि इनिशियली मायोब्लास्ट अलग अलग पड़े हुए थे। ठीक है जी, मल्टीपल मायोब्लास्ट आपस में इकट्ठे हुए, फ्यूज करना शुरू किया। जब फ्यूज करना शुरू किया तो इन्होंने कॉर्ड्स में, कॉर्ड की फॉर्म में आना शुरू हो गए, और जब मल्टीपल कॉर्ड्स आपस में एक जगह इकट्ठी हुई, सो दे फॉर्म अ सिंगल सिलेंड्रिकल ट्यूब। ठीक है, ये एक सिंगल मसल स्केलेटल मसल फाइबर है विच इज मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड स्ट्राइएटेड। अच्छा जी, फिर अगर हम मसल्स के अंदर फाइबर की बात करते हैं तो तीन तरह के फाइबर्स मिलते हैं, रेड फाइबर्स हैं, वाइट फाइबर्स हैं और इंटरमीडिएट फाइबर्स हैं। अब ये क्या होंगे? सर, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो रेड फाइबर्स है। ठीक है, जिसमें नहीं होगा वो वाइट है। और इंटरमीडिएट में थोड़े से सर, होंगे। इसका आइडिया नहीं है। अच्छा, मीन्स वो अगर, एरोबिक रेस्पिरेशन में काम आता है इसीलिए। अच्छा, अब इस चीज को आप कंपेयर कर लें कि रेड मीट और वाइट मीट की हम जो बात करते हैं वो बेसिकली दिस इज द सेम। ठीक है, जिसमें मायोग्लोबिन ज्यादा होगा वो रेडिश अपीयर करेगा, जिसमें मायोग्लोबिन कम हो जाएगा दैट वुड बी अपीयरिंग वाइट। ठीक है, क्योंकि वहां पे उस तरह की ऑक्सीजनेशन या वो कंपोनेंट नहीं है विच वुड गिव द रेडिश कलर। ठीक है जी, और लास्ट में फिर इंटरमीडिएट है जिसमें कुछ हद तक दोनों चीजों की फीचर्स आएंगे। जो वाइट फाइबर्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि वो वाइट मसल या वाइट फाइबर्स हैं वो फटीग नहीं होते हैं। जो रेड फाइबर्स हैं वो बहुत जल्दी फटीग हो जाएंगे, या रेड मीट में जो फाइबर्स हैं वो फटीग हो जाएंगे बिकॉज ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। वाइट फाइबर स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं, वो फटीग नहीं होते, एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं करते। ठीक है जी, फिर ये कुछ टर्म्स हैं जो हमने पहले जिक्र कर दिया कि सार्कोलेमा is the cell membrane of muscle tissue. Sarcoplasm is the cytoplasm of the muscle, and sarcoplasmic reticulum is the name. Endoplasmic reticulum of muscle is the sarcoplasmic reticulum. ठीक है जी, उसके बाद और जो एक सिंगल सेल है दैट इज अ मसल फाइबर और मायोसाइट। कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग की बात अगर करें हम, कि बाहर से अंदर की तरफ, अगर इस तरह देखें, कंप्लीट मसल को जो कनेक्टिव टिश्यू शीट कवर करेगी दैट इज द एपिमाइजियम। उसके अंदर बंडल्स हैं, so each fascicle or the bundle is covered by another layer of connective tissue that is the perimysium। और हर बंडल के अंदर जो सिंगल मायोसाइट्स हैं that are covered by a independent layer of connective tissue that is called endomysium। ठीक है जी, so innermost endomysium, बंडल और फेसिकल के अराउंड पेरीमाइजियम, और कंप्लीट मसल के जो कनेक्टिव टिश्यू कवर कर रहा है दैट इज एपिमाइजियम। अगर आप इसी को नर्वस सिस्टम की लेयर से कंपेयर करें तो जो इनर मोस्ट लेयर थी वहाँ एंडोन्यूरियम थी, अराउंड द नर्व फेसिकल पेरिन्यूरियम थी या एपिन्यूरियम थी? अगर हम पेरिफेरल नर्व की बात करते हैं ट्रांसफर सेक्शन की, तो ईस्ट न्यूरॉन इज कवर्ड बाय एंडोन्यूरियम। जो नर्व फाइबर बंडल बनता है उसके अंदर पेरिन्यूरियम आ जाएगा और सबके बाहर एपिन्यूरियम आ जाएगा। सो दीज आर द सेम लेयर्स, लेकिन उसके मसल टिश्यू के हिसाब से इनका नाम चेंज हो जाता है। ठीक है, जब ट्रांसफर सेक्शन की हम बात करते हैं तो इसमें आपने याद ये रखना है कि जो स्केलेटल मसल्स हैं उनका डायमीटर सेम रहेगा क्योंकि वो सिलेंड्रिकल हैं। जो कार्डियक मसल है उसमें ब्रांचिंग पैटर्न अपीयर हो जाएगा, और जो स्मूथ मसल है
उसको हमने कहा था कि वो स्पिंडल शेप्ड है, तो सेंट्रल पार्ट थिक होगा जिसके अंदर न्यूक्लियस है। जैसे जैसे पेरिफेरी की तरफ जाते जाएंगे तो वहां पर न्यूक्लियस भी नहीं होगा और उसका डायमीटर भी कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात आते हैं कि जी किस तरह है कि if we classify them according to the mode of muscle attachment, ठीक है। अगर बोन से डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है तो एपिमाइजियम इज कंटिन्यूअस विद द पेरियोस्टियम ऑफ द बोन, ठीक है। एग्जांपल इसकी इंटरकोस्टल मसल्स हैं जो कि एक रिब से स्टार्ट होकर निचले रिब पे जाके डायरेक्टली अटैच हो जाते हैं। अगर इनडायरेक्टली बोन से कनेक्ट होना है तो उसके लिए टेंडन बीच में आएगा, ठीक है। जिस तरह आपने अगर लोअर लिम्ब के मसल्स याद करें तो टेंडन ऑफ क्वाड्रिसेप्स फेमरस था जो पेटेला पे जाके कवर कर रहा था और लिगामेंटम पेटेली आगे बोन के साथ कनेक्ट कर रहा था, ठीक है। बोन टू बोन लिगामेंट होगा और मसल टू बोन जब कनेक्ट होना है सो दैट विल बी द टेंडन। तो इसका जो टेंडन होगा एपिमाइजियम ऑफ द टेंडन के साथ मर्ज करते हुए पेरियोस्टियम से मर्ज करेगा, डायरेक्टली एपिमाइजियम पेरियोस्टियम से मर्ज नहीं करेगी, ठीक है। इससे बाइसेप्स ब्रेकाई की एग्जांपल है, ठीक है। स्केपुलम में इसकी अटैचमेंट ओरिजिन दो पॉइंट से था और जब डिस्टली इंसर्शन आती है तो दैट इज बाय द टेंडन ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकाई, ठीक है। फिर टू द फेशिया और द टेंडन ऑफ अनदर मसल, इसके एग्जांपल कोई, अगर हम फिश टू द अटैचमेंट ऑफ मसल टू द फेशिया की बात करते हैं, हैंड में पाल्मेरिस ब्रेविस जो कि स्किन और डीप फेशिया के साथ मर्ज कर जाएगा। और अगर किसी और मसल्स की बात करते हैं तो लम्ब्राइकल्स थे हैंड में जो ओरिजिन तो आगे से कर रहे थे और पीछे जाके एक्सटेंशन एक्सपेंशन में मर्ज कर रहे थे, ठीक है जी। जो मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन है वो स्किन के डीप फेशिया में जाके मर्ज कर जाएंगे कोलेजन फाइबर्स के साथ, और जो थिन शीट्स बननी है इन द फॉर्म ऑफ एपिनेरोसिस वो एक और इसकी मोड ऑफ अटैचमेंट है। अच्छा जी, अगर यहाँ पे आप देखते हैं रेक्टस शीथ का, that is formed by the epineuritis of the external oblique, internal oblique and transversus abdominis, और जो इसका सेंट्रल डिप्रेशन मिड पॉइंट आएगा जहां पे राइट और लेफ्ट के फाइबर्स इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज द लीनिया एल्बा, ठीक है जी। फिर एक्शन ऑफ मसल ग्रुप्स की अगर हम बात करते हैं वो क्या होगा कि कुछ ने मूवमेंट स्टार्ट करानी है, कुछ ने उसको सपोर्ट करना है, कुछ ने अपोज करना है और कुछ ने मूवमेंट को बैलेंस करना है, ठीक है जी। सो डिपेंडिंग ऑन द एक्शन प्राइम मूवर्स कौन से होंगे जो मूवमेंट को स्टार्ट करवाएंगे, इनको एगोनिस्ट भी कहते हैं, ठीक है जी। दे प्रोड्यूस द मूवमेंट की इनकी वजह से मूवमेंट स्टार्ट होनी है, ये किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है। एग्जाम्पल ब्रेकियलिस की है और ये करेगा क्या, फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो जॉइंट। फिर मेन मसल के साथ उसको असिस्टेंट चाहिए जो कि उसकी मदद करेंगे उसी काम को करने के लिए, सो दे आर साइनर्जिस्टिक्स, ठीक है। स्टेबलाइज द नियर जॉइंट है और वो जो फंक्शन प्राइमरी मसल मूवर प्राइमरी मूवर कर रहा था करना उन्होंने वही है, लेकिन उसकी फोर्स कम हो जाएगी और साथ में उसको असिस्ट करेंगे, खुद नहीं वो करेंगे। तो इसी तरह फ्लेक्शन ऑफ एल्बो पे बाइसेप्स ब्रेकाई जो है दैट वुड बी साइनर्जिस्टिक। अब बाइसेप्स ब्रेकाई का अपना प्राइमरी एक्शन क्या होगा, दैट इज अ पावरफुल, फ्लेक्शन नहीं फ्लेक्शन तो उसका साइनर्जिस्टिक एक्शन है विद द ब्रेकियलिस, सुपिनेटर 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 है, वेरी गुड। कि मेन प्राइमरी एक्शन बाइसेप्स ब्रेकाई का पावरफुल सुपिनेशन है, ठीक है। और जो सुपिनेटल मसल है वो उसको साइनर्जिस्टिकली सपोर्ट करेगा। और अगर हम फ्लेक्शन ऑफ एल्बो की बात करते हैं तो प्राइम मूवर ब्रेकियलिस है और उसको साइनर्जिस्टिकली मदद मिल रही है बाय द बाइसेप्स ब्रेकाई। फिर आ गया एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट का ऑपोजिट है एंटागोनिस्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि जी मुखालफत करनी है, अगर एक मूवमेंट हो रही है तो उसकी ऑपोजिट उसको रोकना है कि जी ये ना हो, तो दैट इज एगोनिस्ट, ठीक है जी। अब एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट
आपस में क्यों इन्वॉल्व होंगे? कि जिस तरह आपने पढ़ा है कि जी मसल ग्रुप्स हैं, एक साइड पे फ्लेक्सर कंपार्टमेंट होता है, एक में एक्सटेंसर होता है, ठीक है। अगर दोनों सर एक, हाइपर मोबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए। जी वेरी गुड, वो इस तरह कि हमने कहा कि जी एक तरफ फ्लेक्सर ग्रुप है, एक तरफ एक्सटेंसर ग्रुप है, ठीक है। अगर दोनों एक ही टाइम पे कांटेक्ट करना शुरू कर देंगे तो मूवमेंट तो होगी नहीं, कि वो एक दूसरे के फोर्स को बैलेंस कर देंगे और मूवमेंट नहीं होगी। लेकिन टू सम एक्सटेंट अपोज करने का फायदा ये है कि जी एक तरफ के मसल्स फिक्स हो गए और जो अपोजिट ग्रुप ऑफ कंपार्टमेंट के मसल्स है वो अपना एक्शन करके मूवमेंट प्रोड्यूस कर देगा। इसके मॉडरेट्स द स्पीड और रेंज ऑफ द एगोनिस्ट, ठीक है। और साथ में क्या करेगा कि एक सर्टेन लिमिट या एक्सटेंट जो उसकी नॉर्मल रेंज ऑफ मूवमेंट है उससे आगे मूवमेंट नहीं होने देगा ताकि इंजरी ना हो। तो बाइसेप्स ब्रेकाई के ऑपोजिट आ जाएगा ट्राइसेप्स ब्रेकाई। So that would triceps brachii would act as antagonist to the biceps brachii. फिर आ जाएगा फिक्सेटर। अब ये क्या होगा? फिक्सेटर से क्या हमें समझ आती है? सर मूवमेंट स्टेबलाइजेशन के लिए। मूवमेंट स्टेबलाइजेशन के लिए। कि इसके अब इस तरह आप समझेंगे कि कोई मसल दोनों तरफ बोन्स पे अटैच है। सो अब ये डिसाइड करना है कि जी मूवमेंट प्रॉक्सिमली करवानी है डिस्टली करवानी है, ठीक है। सो एक तरफ बोन्स या जॉइंट्स को फिक्स करना है ताकि दूसरी तरफ मूवमेंट हो सके, ठीक है। जिस तरह अगर एल्बो की फ्लेक्शन की हम बात कर रहे हैं तो जो रोम्बॉइड्स हैं वो स्केपुला को अपनी जगह फिक्स कर देंगे ताकि आर्म और एल्बो पे मूवमेंट हो सके। अगर स्केपुला भी मूव करना शुरू कर देगा तो फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो जॉइंट पे पॉसिबल नहीं होगी। अच्छा जी, यहाँ पे आप देख लेंगे जी रोम्बॉइड मेजर और रोम्बॉइड माइनर मसल्स हैं वो स्केपुला को होल्ड कर रहे हैं ताकि स्केपुला अपनी जगह फिक्स रहे और जो आर्म के मसल्स हैं वो एक्ट करके एल्बो जॉइंट की फ्लेक्शन करवा सकें, ठीक है। अच्छा जी, फिर एक चीज और जो पार्ट्स ऑफ अगर मसल की हम बात करते हैं तो एक उसका ओरिजिन पॉइंट होगा, एक इंसर्शन पॉइंट होगा और जो सेंट्रल थिक पोर्शन है दैट इज द बेली ऑफ द मसल। अब ओरिजिन और इंसर्शन कुछ मसल्स का आपस में इंटरचेंजेबल है, दैट वुड डिपेंड कि मूवमेंट मेनली करवानी कहाँ पर है। जहाँ मूवमेंट होनी है वो इंसर्शन पॉइंट होगा और जहाँ पे मूवमेंट नहीं करवा रहा दैट वुड बी द ओरिजिन एंड और द स्टेशनरी एंड, ठीक है जी। अगर बाइसेप्स ब्रेकाई की हम बात करते हैं तो प्रॉक्सिमली इसने कोई मूवमेंट नहीं करवानी, डिस्टली इसने सुपिनेशन करवानी है। सो डिस्टल एरिया वुड बी इंसर्शन ऑन द रेडियस और ना ऑन द रेडियस, ठीक है। और जो है स्केपुला था या ग्लेनो ट्यूबरकल था इस जगह पे इसने फिक्स करना है कि जी यहाँ पे मूवमेंट ना हो और डिस्टली एल्बो जॉइंट मूवमेंट हो सके। सो उसके हिसाब से ऑरिजिन इंसर्शन आपस में इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं कि जनरली जो मसल का फंक्शन होगा उस हिसाब से हम ऑरिजिन और इंसर्शन को लेबल कर देते हैं। इसी तरह जो ट्राइसेप्स ब्रेक आई है इसका ऑरिजिन तीन हेड्स का, एक इंफ्राग्लिनो ट्यूबरकल से है, शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस से, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसने शोल्डर जॉइंट पे स्कैपुला पे कोई मूवमेंट नहीं करवानी है लेकिन एल्बो की एक्सटेंशन करवानी है। सो जहाँ पे एल्बो की एक्सटेंशन पे अटैचमेंट आ रही है वहां पे वो इंसर्शन पॉइंट होगा और जहां पे स्टेबलाइज कर रहा है दैट वुड बी द ओरिजिन पॉइंट। अच्छा जी, अब डिपेंडिंग ऑन द मसल फाइबर अरेंजमेंट जो है ना, मसल्स को हम इस तरह भी क्लासिफाई कर सकते हैं। जिस तरह बाइसेप्स है उसके दोनों तरफ टेंडन है और सेंटर में डायलेटेड पोर्शन है या बेली है, so that again gives an appearance of a discoid or the fusiform shape spindle shape, ठीक है। सो अगर फ्यूजिफॉर्म हेडिंग आती है तो उसके अंदर मसल आ जाएगा बाइसेप्स ब्रेकाई। फिर कुछ मसल फाइबर्स हैं जो पैरेलली रन करते हैं ताकि वो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करवा सकें। इसकी एग्जांपल आ जाएगी रेक्टस एब्डोमिनस, राइट साइड का भी और लेफ्ट साइड का भी, ठीक है जी। फिर उसके बाद कि मसल ओरिजिन तो एक बहुत वाइड रेंज से था, बहुत ज्यादा एरिया से था, लेकिन इंसर्शन पे उसने आके कन्वर्ज होके इकट्ठा होके एक पॉइंट पे इंसर्ट कर दिया।
सो दैट इज एग्जांपल इज द पेक्टोरालिस मेजर। और ये कन्वर्जेंट मसल है कि ऑरिजिन बहुत वाइड था, 6 से 8 रिब्स से स्टर्नम से ऑरिजिन किया, जाके एक पॉइंट पे इंसर्शन कर दी, सो दैट इज अ कन्वर्जेंट मसल। ठीक है जी। फिर अगर सर्कुलरली अरेंज्ड मसल्स हैं, देयर वुड बी ऑर्बिकुलरिस ओक्यूला, इसकी एग्जांपल है अराउंड द आई, ऑर्बिटल ओपनिंग। अच्छा जी। अब तीन मसल्स ये जो आपको ड्रॉ किए हुए हैं डायग्राम में आ रही हैं, ये भी समझ लें कि जी इसको हम पेनेट का लफ्ज जो हम है इस्तेमाल करते हैं, दैट इज अपीयरेंस ऑफ अ फेदर ऑफ द बर्ड्स। ठीक है। अगर सेंट्रल एक्सिस के अराउंड सिर्फ एक तरफ सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फाइबर जाके अटैच कर रहे हैं, तो उसको हम यूनिपिनेट कहेंगे। अगर ये सेंट्रल अटैचमेंट पॉइंट सेंटर में है और दोनों तरफ से ऑब्लिकली फाइबर्स आके अटैच हो रहे हैं, सो दैट वुड बी बाइपिनेट। और अगर ये बाइपिनेट पैटर्न 2 या 3 दफा इकट्ठा एक ही जगह पे जाके आ जाएगा, सो दैट वुड बी मल्टीपेनेट। यूनिपिनेट की एग्जांपल पाल्मेंट्रोशियाई। बाइपिनेट अगर लोअर लिम्ब से हम बात करें तो वो रेक्टस फेमरस होगा, और अगर अपर लिम्ब में हैंड में बात करें तो डॉर्सल इंटरओशियाई बाइपिनेट आ जाते हैं। फिर जो मल्टीपिनेट, इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल डेल्टॉइड मसल है। ये बात हमने कर दी थी कि जी अरेंजमेंट किस तरह की है। फिर आगे एक स्ट्रैप मसल्स आते हैं। ठीक है। जिस तरह स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड है, सो वो ऑपोजिट साइड पे मूवमेंट करवाएंगे, ऑरिजिन उनका होगा फ्रॉम द स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट रीजन, और जाके वो इंसर्ट करते हैं टू द मास्टोइड प्रोसेस, एंड व्हेन दीज कॉन्ट्रैक्ट दे रोटेट द हेड टू द ऑपोजिट साइड। अच्छा जी। अब आप लोगों ने मुझे बताना है, हाँ जी, पेक्टोरलिस मेजर कौन सी टाइप का मसल है depending on the appearance or the arrangement of fibers? Convergent. Multipenate. Convergent. कन्वर्जेंट। Very good. अगर हम parallelly arranged fibers की बात करते हैं तो वो Rectus Rectus abdominis. abdominis. rectus Rectus abdominis. Multipinnate, पेक्टोरस मेजर। Deltoid. Pectoralis major. डेल्टोइड Deltoid. Deltoid. deltoid है। pectoralis major convergent मसल था कि इसका origin wide है, clavicle से है, sternum से है, upper 6 to 8 ribs से है, और जाके इसकी इंसर्शन सिंगल पॉइंट पे हो रही है। सो वो एक कीफ की तरह या नैरो डाउन होते हुए एक पॉइंट पे इंसर्ट कर रहा है, तो वो कन्वर्जेंट है। और जो डेल्टोइड है, दैट इज मल्टी पेनेट मसल। ठीक है जी। फेदर लाइक अपीयरेंस को हम पेनेट कहते हैं। ये बात हमने कर दी। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये वाले जो है, दीज आर द पाल्मेंट्रोशियाई, ये कौन सी टाइप के होंगे? Unipenate. यूनिपेनेट। और अगर डॉर्सल इंट्रोशियाई की हम बात करते हैं तो Bipinnate. बाइपिनेट। वेरी गुड। इसी तरह अगर लोअर लिम्ब में हम बात करते हैं तो रेक्टस फेमरस इज बाइपिनेट के सेंट्रल एक्सिस के अराउंड दो तरह से फाइबर्स आके अटैच हो रहे हैं। डेल्टॉइड मल्टीपिनेट हमने कह दिया। ठीक है जी। फिर उसके बाद मसल्स की ब्लड सप्लाई कहाँ से आएगी? ये जो एक तो आर्टरीज, इनकी जो ब्रांच ब्लड सप्लाई एंटर होनी है, ब्लड वेसल्स एंटर होनी है, मोस्टली दे आर फ्रॉम द डीपर सरफेस ऑफ द मसल्स। ठीक है जी। फिर उसके अगर नर्व सप्लाई की बात करते हैं तो जो नर्व उस एरिया को क्रॉस करते हुए जा रही है, जैसा हिल्टन्स लॉ था कि जिस जॉइंट को नर्व क्रॉस करेगी वो आर्टिकुलर ब्रांच देती जाएगी, सो इसी तरह जिस मसल के पास से नर्व गुजरेगी वो उसकी ब्रांच देती जाएगी। ठीक है जी। अब सेंसरी रिसेप्टर्स मसल में किस तरह के, कितनी तरह के होने चाहिए, क्या करेंगे? सर आपने क्या कहा, सेंसरी रिसेप्टर्स कितने तरह के होने चाहिए? मसल्स के अंदर सेंसरी रिसेप्टर्स कितनी तरह के होने चाहिए ताकि मसल्स प्रॉपर्ली फंक्शन कर सकें? सर दो दो। कौन कौन से? एफरेंट डिफरेंट। गोल्गी टेंडन apparatus एंड स्पेंडल मसल स्पेंडल। जी ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स आएगा, गोल्जी टेंडन ऑर्गन आ जाएगा, जो कि उसके
प्रेशर को, स्ट्रेच को मेजर कर, डिटेक्ट कर रहा है और उसके अकॉर्डिंगली मसल कॉन्ट्रेक्शन होगी, ठीक है। इसी तरह फ्री नर्व एंडिंग्स पेन के लिए होंगी मसल्स में, और कीमोरिसेप्टर्स होंगे दैट वुड बी stimulated or sensitive to the lactic acid or the acidic change in the environment. अच्छा जी, उसके बाद लास्ट चीज जो हमने मसल्स में करनी है वो टोनिक, उसकी टाइप ऑफ कॉन्ट्रेक्शंस हैं कि जी ये क्या, किस किस तरह से मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उससे होगा क्या। अगर हम टॉनिक कॉन्ट्रेक्शन कहते हैं तो इससे क्या बात समझ आती है? Contraction in phases. Contraction in phases, अच्छा, anyone else? Sir, contraction which increases tone. अच्छा, कि एक चीज आपने पढ़ी हुई है कि जी जितने भी स्केलेटल मसल्स हैं विच आर अंडर वॉलंटरी कंट्रोल, दे रिमेन इन द स्टेट ऑफ पार्शियल स्टेट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन, या उनकी अपनी मसल टोन रहती है ताकि वो फ्लेसिड ना हो, ठीक है। तो विदाउट एनी पर्पस ऑफ कंट्रेक्शन या मूवमेंट के बगैर जो एक पार्शियल स्टेट ऑफ कंट्रेक्शन या टोन मेंटेन करते हैं स्केलेटल मसल्स, दैट इज कॉल्ड द टोनिक कंट्रेक्शन, ठीक है जी। फिर फेजिक कंट्रेक्शन क्या होगी कि जिस वक्त जरूरत पड़ी है उसके हिसाब से वो कंट्रेक्शन होनी है। अब ये आगे फर्दर दो टाइप्स की होगी, एक आइसोटोनिक और एक आइसोमेट्रिक। इसका मतलब ये है, जो आइसोटोनिक कंट्रेक्शन है कि अगर कोई चीज हमने उठानी है, मूव करवानी है, तो मसल की लेंथ कम हो जाएगी, लेकिन द टोन का जो एक लेवल है, जो अमाउंट ऑफ टेंशन है इन द रेस्टिंग फेज, दैट रिमेन्स द सेम, ठीक है। कि उसमें मसल की लेंथ कम हो जाएगी लेकिन टोन उतनी ही रहेगी, सो दैट वुड बी आइसोटोनिक कंट्रेक्शन। और इसके ऑपोजिट आइसोमेट्रिक कंट्रेक्शन है कि जिसमें लेंथ ऑफ द मसल को सेम रखना है लेकिन उसको कोई चीज लिफ्ट करने के लिए, होल्ड करने के लिए टोन बढ़ा सकते हैं ताकि उसी पोस्चर में हम मेंटेन करें, लेकिन वो भारी चीज या कोई भी चीज, ऑब्जेक्ट जो है, उसको हम साथ में कैरी कर सकें। सो अगर लेंथ चेंज नहीं होगी और टोन बढ़ रही है, सो दैट इज आइसोमेट्रिक। और अगर लेंथ कम हो रही है और टोन सेम रह रही है, सो दैट इज आइसोटोनिक। और तीसरी तरह की कंट्रेक्शन है रिफ्लेक्सिव कंट्रेक्शन। रिफ्लेक्स क्या होता है? सर किसी चीज का रेस्पॉन्स होना। रिस्पॉन्स होना, वो एक तो अंडर वॉलंटरी कंट्रोल नहीं होगा, पहली बात, ठीक है। और जिस वक्त जरूरत पड़ी तो वो कंट्रेक्शन होगी, जब जरूरत नहीं है तो वो कंट्रेक्शन नहीं होगी। तो इसके रिफ्लेक्सिव कंट्रेक्शन दो चीजों से आप याद रखें। एक डायफ्राम की हम बात करेंगे कि डायफ्राम बेसिकली है तो स्केलेटल मसल्स, लेकिन जिस वक्त इंट्राथोरेसिक प्रेशर या कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ता है, सो इन दैट रिस्पॉन्स इट ऑटोमेटिकली contracts and increases the negative intrathoracic pressure, ठीक है जी। जो डायफ्राम है वो है तो स्केलेटल मसल, लेकिन वो हमारी वॉलंटरी कंट्रेक्शन में नहीं आएगा कि हमारी मर्जी हो तो कॉन्ट्रैक्ट करे, मर्जी हो तो ना करे, वो खुद ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो वो उसका एक रिफ्लेक्स है। इसी तरह जब क्लिनिकल एग्जामिनेशन में नी जर्क रिफ्लेक्स करते हैं तो उसमें क्या होता है कि in response to a certain stimulus, that is the striking of hammer to the patellar ligament, ligamentum patelli, तो जो quadriceps से एक दफा कॉन्ट्रैक्ट किया फिर रिलैक्स हो गए, so that was a reflexive contraction in response to the stimulus। अच्छा जी, फिर अगर किसी मसल की नर्व सप्लाई खत्म हो जाए, so that is paralyzed। और जिसका तो पैरालाइज हो जाएगा, मसल टोन खत्म हो जाएगी, फ्लैसिड हो जाएगा, और जब यूज नहीं होगा तो वो एट्रोफी कर जाएगा। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर पुल्ड मसल की हम बात करते हैं, सो कोई एक्सेसिव फोर्स लगने की वजह से पार्शियल टीयरिंग या पार्शियल जब स्ट्रेन आ गया किसी मसल फाइबर में, सो दैट इज द पुल्ड मसल, ठीक है जी। अच्छा, एक चीज जो थोड़ा सा एमसीक्यूज में या इस तरह स्टेटमेंट में कंफ्यूजन डालते हैं
उसमें आपने याद ये रखना है कि जी अगर किसी जगह पे एक्सक्रूशिएट, जिस तरह sciatica में डेफिनेशन में हम करते हैं कि इट इज एक्सक्रूशिएटिंग पेन इन द एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसकी कॉज में डैमेज टू द नर्व नहीं हो सकता। ठीक है जी। इसी तरह अगर कहीं नर्व कंप्रेस हुई है तो उससे नमनेस आ जाएगी, ना पैरालिसिस होगा, ना कोई सेंसरी लॉस होगा, या ना कोई और चीज होगी। तो इस चीज को आपने एमसीक्यूज अटेम्प्ट करते हुए ये कंसिडरेशन में रखना है कि ये टर्म्स आपस में इंटरमिक्स करके थोड़ा सा डॉज करने की बात होती है कि अगर नर्व डैमेज होगी तो पैरालिसिस हो जाएगा, अगर कंप्रेस हुई तो नमनेस हो जाएगी, और अगर नर्व फाइबर्स इरिटेट हो रहे हैं किसी चीज से, कोई चीज उनको चुभ रही है, सो दैट वुड कॉज पेन। sciatica में पेन होती है, दैट इज ड्यू टू इरिटेशन ऑफ द नर्व रूट्स। अगर ज्यादा देर चौकड़ी मार के बैठे रहें या बाजू के बल सो जाएं, तो जब उठते हैं तो टांग या बाजू सोया हुआ होता है, दैट इज द नमनेस, वो कंप्रेशन की वजह से है। और अगर कोई नर्व कंप्लीटली डैमेज हो गई है तो मसल पैरालाइज हो जाएगा, उसमें कोई मूवमेंट, कोई सेंसेशन नहीं बचेगी। ठीक है जी। सो नाउ वी मूव ऑन टू द जॉइंट्स, quickly we cover it and then we can move on to the our main topic of interest, that are the MCQ discussion। ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं कि जी जॉइंट्स की स्टडी को हम क्या कहेंगे, सो दैट इज आर्थ्रोलॉजी। ठीक है। और जॉइंट होता क्या है कि जहां पे दो या दो से ज्यादा बोन्स, ये बोन एंड कार्टिलेज और कार्टिलेज आपस में इन कांटेक्ट आ रही हो। ठीक है। अच्छा जी। जॉइंट्स में करना क्या होता है, जहां पे दो बोन्स का आपस में किया तो स्केलेटन को इकट्ठा कर दिया, और जो ये साइनोवियल जॉइंट स्पेसिफिकली हैं, दे हेल्प इन द मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द स्केलेटन, ताकि मूव भी कर सकें, अपना बॉडी पोस्चर भी चेंज कर सकें। ठीक है जी। कि अगर हम इनको क्लासिफाई करते हैं तो इसके भी मुख्तलिफ क्राइटेरियाज आते हैं कि अगर हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन करते हैं कि उसके फंक्शन के हिसाब से करें, तो कुछ जॉइंट्स जिसमें मूवमेंट नहीं हो रही है, कुछ में ग्लाइडिंग मूवमेंट है और कुछ में फ्रीली मूवमेंट है। सो सिन आर्थ्रोसिस जहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रही, जैसे सूचर्स ऑफ द स्कल, टीथ जो अपने सॉकेट्स में फिट होते हैं, गॉम्फोसिस। ठीक है। फिर जो पार्शली मूवेबल है, जहाँ थोड़ी बहुत ग्लाइडिंग मूवमेंट या स्लाइडिंग मूवमेंट्स हो रही हैं, दैट इज कॉल्ड एम्फी आर्थ्रोसिस। ठीक है। दे आर द पार्शली मोबाइल जॉइंट्स, मूवेबल जॉइंट्स, एग्जांपल इंटरवर्टेब्रल डिस्क और प्यूबिक सिम्फिसिस। और डायआर्थ्रोसिस जो है वो फ्रीली मोबाइल जॉइंट्स हैं, मोस्टली इसमें जितने भी साइनोवियल जॉइंट्स हैं वो इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। और अगर हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन करते हैं कि डिपेंडिंग ऑन के उनके स्ट्रक्चर क्या है, अपना कौन से स्ट्रक्चर्स मिलके बना रहे हैं, तो अगर फाइब्रस टिश्यू आएगा बोन्स के दरमियान में, सो दे आर सिनार्थ्रोसिस या फाइब्रस जॉइंट्स। अगेन द सूचर्स ऑफ द स्कल, गोम्फोसिस एंड सिंडेस्मोसिस, ये तीन तरह की चीजें फाइब्रस जॉइंट्स में आएंगी। कार्टिलेज वो है जिसके दरमियान, बोन्स के दरमियान कार्टिलेज आ रही है, सिनकोन्ड्रोसिस है और सिम्फिसिस है। ठीक है जी। और साइनोवियल जॉइंट्स हैं या डायआर्थ्रोसिस जो फ्रीली मोबाइल हैं। तो एक चीज आपने ये कंपैरिजन में और याद रखनी है कि जितना जॉइंट मोबाइल ज्यादा होगा, उसके डिस्लोकेट या स्टेबिलिटी कम होने के चांसेस उतने ज्यादा हैं, और जितने जॉइंट के अंदर मूवमेंट कम से कम है, उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। अच्छा जी। अगर हम फाइब्रस जॉइंट में हमने कहा था कि तीन तरह की चीजें आती हैं, सूचर्स हैं जो कि स्कल बोन के दरमियान भी हम देख लेते हैं, सिंडेस्मोसिस हैं और गोम्फोसिस हैं। जो सूचर्स हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ ये आपस में इतने फ्यूज नहीं किए होते, लेकिन विद एज द डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड, सो दे बिकम द फिक्स्ड जॉइंट्स डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द सूचर्स। अगर उसके स्ट्रेटेड मार्जिन है तो उसको हम सेरेट सूचर कहेंगे। सेजिटल सूचर एग्जांपल है, कोरोनल सेक्शन है। अगर उसकी शेप लेम्डॉइड सूचर से है तो वो डेंटिकुलेट, दांतों की तरह उसके प्रोसेसेस या फोल्डिंग है, दैट इज डेंटिकुलेट सूचर, एग्जांपल इज द लेम्डॉइड। फिर अगर दोनों मार्जिन फ्लैट हैं तो दैट वुड बी द स्केमस सूचर।
ठीक है, इसी तरह पैलेटाइन बोन्स के दरमियान जो आएगा या मैक्सिलरी पैलेटाइन प्लेट्स ऑफ मैक्सिला, ये भी पैरेलली अरेंज होते हैं, सो दे आर अगेन प्लेन सूचर्स। फिर सिंडस फाइब्रस जॉइंट के अंदर अगली थी सिंडस्मोसिस, सुपीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट जो है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सिंडस्मोसिस। इसी तरह इंफीरियर जो आपस में फाइब्रस कनेक्टेड है और इसकी मूवमेंट कोई भी नहीं है, ठीक है जी। फिर गोम्फोसिस क्या था, tooth fitted in their socket by their ligaments। जो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हैं वो प्राइमरी हैं और फिर सिम्फिसिस हैं। फिर जो प्राइमरी कार्टिलेजिनस है उनको हम सिंकोंड्रोसिस कहते हैं और जो दूसरी तरह है दैट इज सिम्फिसिस। जब यहाँ पे देख लें कि हमने कहा कि प्राइमरी कार्टिलेजिनस है कि कार्टिलेज बोनी सरफेस को कवर कर रही है एंड द टू बोन्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर, these are the primary cartilaginous joints। ठीक है, इसी तरह कोस्ट्रोकॉन्ड्रल जंक्शंस, ये कॉन्ड्रोस्टेनल जंक्शंस, ठीक है जी, these are the primary cartilaginous। और pubic symphysis की अगर हम बात करते हैं so that is the secondary cartilaginous या symphysis की एग्जांपल की आ जाती है। ये रिपीट हो गया। फिर साइनोवियल जॉइंट्स डायआर्थ्रोसिस है कि जिसके अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन होगी, जॉइंट कैविटी है दैट इज फिल्ड बाय द साइनोवियल फ्लूइड और उसकी मूवमेंट फ्रीली पॉसिबल है। अच्छा जी, अगर हम ब्रॉडली करते हैं तो नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, जॉइंट्स ऑफ द हैंड, मेटाकार्पल जॉइंट, कार्पोफेरेंजियल, ये सारे के सारे साइनोवियल या डायआर्थ्रोसिस में आते हैं क्योंकि वो फ्रीली मोबाइल है। अच्छा जी, और अगर एक चीज हम इसको और करके आगे चलते हैं कि साइनोवियल जॉइंट को डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द आर्टिकुलर सर्फेसेस आगे 7 वेराइटीज में डिवाइड करते हैं। टाइप आ गई साइनोवियल और उसके आगे जो वेराइटीज हैं वो डिपेंड करती हैं ऑन द शेप ऑफ द आर्टिकुलर सर्फेसेस, ठीक है जी। अगर दोनों सर्फेसेस प्लेन है जिस तरह between the carpal bones होंगी या tarsal bones होंगी, so that would be the plane joints। hinge कौन सा होगा, जिस तरह दरवाजे का कब्जा होता है कि only two types of movements are possible, flexion और extension, ठीक है, जिस तरह एग्जांपल इसकी है elbow joint। elbow joint is a hinge variety क्योंकि इसमें सिर्फ flexion और extension होती है। जो supination और pronation है वो आपने याद रखना है कि that is the movement occurring on the superior and inferior radio ulnar joints, ठीक है जी। फिर पिवट जॉइंट कौन से होंगे, जिसमें अगर आप सर्वाइकल वर्टेब्रा और स्कल की बात याद करते हैं तो ऑडेंटॉइड प्रोसेस ऑफ द एक्सेस जाके आर्टिकुलेट करता है विद द स्कल, सो दैट इज अ पिवट जॉइंट की पॉइंटेड प्रोजेक्शन है जिसके अराउंड रोटेशन हो रही है। इसी तरह जो सुपीरियर इंफीरियर रेडियल जॉइंट्स हैं दे आर अगेन द टाइप्स ऑफ पिवट जॉइंट्स। फिर कॉन्डाइलर जॉइंट्स वो आ जाएंगे जहाँ पे बोनी प्रोमिनेंसेस या एरियाज बड़े आ गए, ठीक है। नी जॉइंट बाइकॉन्डाइलर भी कहते हैं और मॉडिफाइड हिंज भी कहते हैं। मॉडिफाइड हिंज इसलिए कहते हैं कि जिसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन तो हो रही है एंड इन एडिशन लेटरल और मीडियल रोटेशन भी है जो लॉकिंग में इन्वॉल्व होती है। फिर सेडल जॉइंट्स कौन से होंगे कि जी जिस तरह घोड़े की सीट होती है इसके एक तरफ कनकेविटी है और एक तरफ प्रोमिनेंस है, ठीक है। फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट जो थंब जॉइंट है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सेडल वैरायटी। और बॉल एंड सॉकेट वो होगा कि राउंडेड हेड और डिप्रेशन या कनकेविटी में फिट होगा हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ बॉल एंड सॉकेट वैरायटी। अच्छा जी, अब कम्प्लेक्सिटी पे अगर हम बात करते हैं तो सिंपल जॉइंट्स होंगे, कंपाउंड होंगे और कम्प्लेक्स होंगे। एनी आइडिया कि ये क्या हो सकते हैं? सिंपल जॉइंट क्या होंगे? नहीं सर, आइडिया नहीं है। सिंपल जॉइंट वो होंगे जहां पे बोन और बोन या बोन और कार्टिलेज आपस में डायरेक्टली इन कांटेक्ट आ रहे हैं, तीसरा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो बोन टू बोन शोल्डर जॉइंट आ जाएगा, ठीक है जी।
अगर रिब्स की हम बात करते हैं कि रिब्स कोस्टल कार्टिलेज कॉन्ड्रल कार्टिलेज से कनेक्ट हो रही है, कार्टिलेज जो है वो आगे स्टर्नम से हो रही है, सो दैट वुड बी हेट्रोट्रॉफिक हेट्रोमॉर्फिक। बोन टू बोन हो रही है तो होमोमॉर्फिक, और अगर बोन टू कार्टिलेज हो रही है तो हेट्रोमॉर्फिक है। ठीक है जी। पे कंपाउंड जॉइंट्स वो होंगे जहां पे दो से ज्यादा आर्टिकुलर सर्फेसिस आ रही हैं। एल्बो जॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर क्या हो रहा है कि जी डिस्टल एंड ऑफ द ह्यूमरस इज आर्टिकुलेटिंग विद द रेडियस एज वेल एज अल्ना। तीन सर्फेसिस हो गई तो वो कंपाउंड है। इस तरह नी जॉइंट की जब बात करते सर हैं सिंपल के कोई एग्जांपल बता दें। सिंपल की सिंपल के कोई एग्जांपल एग्जांपल बता दें। शोल्डर जॉइंट, हेड ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट कर रहा है विद द स्कैपुला। हिप जॉइंट, हेड ऑफ फीमर आर्टिकुलेटिंग इन द एसिटेबुलम ऑफ द हिप बोन। ठीक है जी, ये होमोमॉर्फिक है। हेट्रोमॉर्फिक की अगर हम बात करते हैं तो बीच में कार्टिलेज आ जाएगी। रिब और कोस्ट्रोकॉन्ड्रल जंक्शन, कॉन्ड्रोस्टर्नल जंक्शन, ये हेट्रोमॉर्फिक हो जाएंगे कि इसमें दो आर्टिकुलर सर्फेसिस इन्वॉल्व हो रही हैं और कुछ नहीं है। फिर जो कंपाउंड है इसमें दो से ज्यादा आर्टिकुलर सर्फेसिस इन्वॉल्व होती हैं। अगर आप बात करते हैं एल्बो जॉइंट की तो वहां पे डिस्टल एंड ऑफ ह्यूमरस और रेडियस एंड अल्ना के अपर एंड्स आ रहे हैं। नी जॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो वहां पेटेला इन्वॉल्व हो रहा है विद द लोअर एंड ऑफ फीमर और अपर एंड ऑफ टिबिया, तो कंपाउंड वो हो गए। फिर कम्प्लेक्स वो होंगे जिसके अंदर आर्टिकुलर डिस्क या कार्टिलेज जॉइंट कैविटी को आगे सेपरेट कर देगी। ठीक है जी। ऐसा कोई जॉइंट आपको याद आ रहा हो कि जिसमें आर्टिकुलर डिस्क जॉइंट कैविटी को दो में डिवाइड कर दे? नी जॉइंट। जॉइंट कैविटी तो एक रहती है नी में। नी जॉइंट नहीं। wrist joint, wrist joint, anyone else? इंटरवर्टिब्रल जॉइंट। Ankle joint. एंकल joint। अच्छा, अब आप याद करें स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट को। ठीक है, मीडियल एंड ऑफ द क्लेविकल और जो लेटरल साइड ऑफ द स्टर्नम मेनिब्रियम स्टर्नम का जो डिप्रेशन बनता है, इसके अंदर एक आर्टिकुलर कैविटी थी दैट वाज डिवाइडिंग द जॉइंट कैविटी इनटू टू सब कैविटीज। ठीक है जी। इसी तरह टेम्पोरम मैंडिबुलर जॉइंट है जिसके अंदर जॉइंट कैविटी डिवाइड करके उसको दो कंपोनेंट्स में सब डिवाइड करती है, तो दैट इज अ कॉम्प्लेक्स। अच्छा जी, अब एक्सेस क्या होता है? सर वो सराउंडिंग जहां जॉइंट मूव करता हो, direction, एक्सिस। Angle of movement. यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट। अच्छा, 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जो होगा वो उसका एक्सेस होगा। ठीक है जी। कि अगर हम एल्बो जॉइंट पे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की बात करते हैं, सो दैट मूवमेंट इज अकरिंग इंटीरियर टू पोस्टीरियर। ठीक है जी। सो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इंटीरियर टू पोस्टीरियर हो जाएगी, और इन दोनों मूवमेंट का जो 90 डिग्री है दैट इज ट्रांसवर्सली प्लेस्ड। सो ट्रांसवर्स एक्सेस इसका हो जाएगा फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के लिए। तो यूनी एक्सियल वहां पर होगा जहां पे सिर्फ दो मूवमेंट्स हो रही हैं, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। बाय एक्सियल वहां होगा जहां पे चार मूवमेंट्स हो रही हैं, दो मूवमेंट्स का एक एक्सेस होता है। ठीक है जी। फ्लेक्शन एक्सटेंशन का एक होगा, एडक्शन एबडक्शन का एक होगा, मीडियल रोटेशन लैटरल रोटेशन का एक होगा। ठीक है जी। सो अगर एक एक्सेस और दो मूवमेंट्स हैं तो यूनी एक्सियल। अगर चार मूवमेंट्स हो रही हैं, फ्लेक्शन एक्सटेंशन एंड मीडियल लैटरल रोटेशन हो रही है, तो इनके दो एक्सेस बन जाएंगे, दैट विल बी बाय एक्सियल। और अगर इससे ज्यादा मूवमेंट्स हो रही हैं, जैसे सर्कमडक्शन की हम बात करते हैं शोल्डर जॉइंट पे भी थंब पे भी, सो दैट वुड बी मल्टी एक्सियल। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन सैडल की है कि सैडल जॉइंट इस तरह का होगा कि एक तरफ कनकेव सरफेस है और कॉन्वेक्स सरफेस इसके ऊपर फिट इन हो रही है। अच्छा जी, अब ये जो इसकी मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने की थी साइनोवियल जॉइंट्स की वैरायटीज की। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देख लो कि बिटवीन द कार्पल बोन्स या टार्सल बोन्स जो हैं
फ्लैट सर्फेसिस हैं, सो दैट विल बी द प्लेन जॉइंट्स, ये प्लेन वेराइटी। फिर अगर रिस्ट की बात करते हैं तो वहां पे ल्यूनर शेप्ड एरी सरफेस बन रही है, सो दैट इज एन एलिप्सॉइड वेराइटी। अगर सिर्फ हम बात करेंगे रेडियस की तो वो कॉन्डाइल बनता है, और अगर कंप्लीट रिस्ट की हम बात करते हैं तो वो एलिप्सॉइड वेराइटी बनेगी। एल्बो जॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो ट्रोक्लिया है और ट्रोक्लिया नॉच है, सो वो सिर्फ दो तरह की मूवमेंट्स हो रही हैं जिस तरह कब्जे पे होती हैं, सो दैट इज हिंज। ठीक है, फिर उसके बाद ये सैडल है, कन्वेक्सिटी फिटिंग इन इनटू द कनकैविटी, सो दिस इज अ सैडल वेराइटी। फिर उसके बाद ये पिवट शो किया हुआ है, सुपीरियर रेडियल का भी और इंफीरियर का भी इसी आएगा। दिस रेडियल tuberosity is fitting into the radial fossa of the ulna। ठीक है जी, और उसके अराउंड ये रोटेटरी मूवमेंट्स हो रही हैं। और यहाँ पर क्या शो किया हुआ है कि राउंडेड हेड है which is fitting into the concavity, so that is a ball and socket variety। अच्छा जी, ये हमने बात कर दी। अच्छा जी, तो अगर आप यहाँ पे देखते हो कि head of humerus is directly articulating with the glenoid fossa or glenoid cavity of the scapula, so this is a simple joint। ठीक है, complex कहाँ पर हमने कहा था, सॉरी हमने कहा था कंपाउंड वो होगा जिसमें आर्टिकुलर सर्फेसेस दो से ज्यादा हैं। So यहाँ पे lower end of the humerus articulating with the upper end of radius as well as ulna, so ये कंपाउंड हो गया। और कम्प्लेक्स वो हो जाएगा जहां पे जॉइंट कैविटी आपस में कार्टिलेज आ रही है, डिस्क आ रही है जो जॉइंट कैविटी को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है। दिस इज अ स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट। अच्छा जी, फिर एक्सिस की हमने बात की थी कि दैट इज 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। सो अगर सुपिनेशन और प्रोनेशन की हम बात करते हैं दैट इज द रोटेटरी मूवमेंट। ठीक है, और उसका एक्सिस वर्टिकल हो जाएगा। किसी भी जॉइंट को स्टेबल करने के लिए क्या कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं कि उनकी आर्टिकुलेशन या जो लॉकिंग की मैकेनिज्म है वो कितना फिट इन हो रहा है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे। फिर टोन ऑफ मसल्स है जो उसके सराउंड कर रही है वो उसको होल्ड करके रखेगी, और जॉइंट के अपने लिगामेंट्स हैं जो आर्टिकुलर सर्फेसिस को जोड़ के रखेंगे। ठीक है जी, फिर बर्सास क्या होते हैं, these are the sacs filled by synovial fluid, और इनकी लाइनिंग क्या होगी, synovial membrane। अब ये बर्सास होंगे कहाँ पे, करेंगे क्या, सर जॉइंट पे होंगे फ्रिक्शन को वो करने के लिए। ठीक है, they are present Control between the tendons of the muscle and the bony surface of the joint and they help to reduce the friction during the movements। ठीक है जी, इनकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो ब्रोसाइटिस हो जाएगा। ठीक है जी, कि अगर बर्सा के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो दैट इज ब्रोसाइटिस। कॉमनली आपने सुना हो कि ब्रोसाइटिस नी जॉइंट में किस कौन सी कंडीशन में कौन से काम करते हुए ज्यादा पॉसिबल है, हाउसमेट्स नहीं आपने सुना होगा। ठीक है, नी लॉक। नी लॉक, जी बिल्कुल। अच्छा, अब ब्रीफली ये जो मूवमेंट्स हमने की थी उनका हम देखते हैं कि ग्लाइडिंग हम किसको कह रहे हैं कि व्हेन द बोन स्लाइड्स ओवर वन अनदर, अपनी जगह से हिले नहीं लेकिन एडजस्ट करने के लिए एक दूसरे के ऊपर थोड़ा बहुत ओवरलैप कर गया। फ्लेक्शन कब होगी, जब दो सर्फेसिस के दरमियान एंगल कम होगा। ठीक है, किताबों में जो आप पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन डेफिनेशन में इस तरह आता है कि जी कहता है कि इंटीरियर मूवमेंट इज मूवमेंट ऑफ फ्लेक्शन। सो वो अगर आप एल्बो जॉइंट को और नी जॉइंट को कंपेयर करते हैं तो वो तो ऑपोजिट है। ठीक है जी,
सो फ्लेक्शन को आपने कहना है कि जिस वक्त दो सरफेस एक दूसरे के करीब आ रही हैं एंगल कम हो रहा है, और जब दो सरफेस एक दूसरे से दूर जा रही हैं एंगल बढ़ रहा है, सो दैट इज एक्सटेंशन। एबडक्शन क्या होगा? मूविंग अवे फ्रॉम द मिड लाइन, और एडक्शन वुड बी मूविंग टुवर्ड्स द मिड लाइन। मीडियली मूव करेगा तो एडक्शन है, एड से आपने याद रखना है, और अगर दूर जाएगा तो एबडक्शन है। सरकमडक्शन जो है वो रोटेटरी मूवमेंट है कि जो 6 मूवमेंट्स को मिला के हम कहते हैं फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन एंड मीडियल एंड लैटरल रोटेशन। ठीक है जी। सुपिनेशन, प्रोनेशन, फोरआर्म में there are the rotatory movements। अब इनवर्जन, इवर्जन आपने थोड़ा सा याद रखना है। इनवर्जन क्या है कि when the sole of the foot faces or turns medially, और इवर्जन क्या होगा? it faces laterally or outwards। ठीक है जी। अब इसका जो important question बनता है कि this movement inversion and eversion they are occurring at the subtalar joint है, ankle joint पे ये नहीं होते हैं। सो वो एक कॉन्सेप्ट बना होता है कि जी ये मूवमेंट्स एंकल पे होंगे, एंकल जॉइंट पे सिर्फ डॉर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन है। इनवर्जन और ईवर्जन की मूवमेंट्स सब टेलर जॉइंट पे हैं जो टेलस और कैल्केनियन के दरमियान है। तो जॉ के अगर हम 4 मूवमेंट्स की बात करते हैं तो प्रोट्रैक्शन है, रिट्रैक्शन है, लैटरल मूवमेंट है। ठीक है जी। एलिवेशन, डिप्रेशन। प्रोट्रैक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द जॉ, लोअर जॉ। रिट्रैक्शन, वापस की तरफ आना। एलिवेशन, मुंह बंद करते हुए। ठीक है जी। या अगर बॉडी के कोई लिम्ब को ऊपर उठा रहे हैं, सो दैट इज एलिवेशन। और डिप्रेशन क्या होगा? मूविंग इंफीरियरली और डाउनवर्ड्स। थंब में एक मूवमेंट आती है ऑपोजिशन, एक दूसरे को अपोज करना। ठीक है जी। अब वन बाय वन इन डायग्राम्स हम देख लेते हैं एंड देन वी मूव ऑन टू द एमसीक्यूज। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस इज ग्लाइडिंग मूवमेंट है, साइड टू साइड। फर्स्ट डायग्राम अपर लेफ्ट, दैट इज फॉरवर्ड मूवमेंट जो नेक की तरफ आ रही है, चेस्ट की तरफ, दैट इज फ्लेक्शन। मिड लाइन तक जब पहुंचे तो एक्सटेंशन है, और जब बैकवर्ड्स इसको एक्सटेंड करेंगे दैट इज हाइपर एक्सटेंशन। टुवर्ड्स आर्म मूव करेंगे तो फ्लेक्शन है, अवे जाएंगे तो एक्सटेंशन है। ठीक है जी। इसे लैटरल फ्लेक्शन, लैटरल बेंडिंग या लैटरल फ्लेक्शन। एडक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स द मिड लाइन, और एबडक्शन अवे फ्रॉम द मिड लाइन। अच्छा जी। सुपिनेशन, प्रोनेशन ये रोटेटरी मूवमेंट्स है ऑफ द अपर लिम्ब। अगर जॉ फॉरवर्ड मूव करेगा तो प्रोट्रैक्शन है, और अगर वापस बैकवर्ड लेके जाएंगे तो रिट्रैक्शन है। ठीक है। और ऑपोजिशन क्या है कि थंब अगेंस्ट द लिटिल फिंगर, ये जब एक दूसरे को फोर्सली अपोज कर रहे होते हैं, दैट इज द ऑपोजिशन। फिर डिप्रेशन और एलिवेशन। अगर जॉ की हम बात करते हैं तो मुंह का खोलना जो है वो डिप्रेशन है, और मुंह बंद करना एलिवेशन है। और अगर शोल्डर्स रीजन में हम करते हैं तो शोल्डर्स को नीचे की तरफ लेके जाना डिप्रेशन है, और टुवर्ड्स द नेक लाना या हेड लाना एलिवेशन है। फिर इनवर्जन और इवर्जन ये शो किए हुए फुट के, टुवर्ड्स द मीडियन प्लेन इनवर्जन है और आउटवर्ड्स इवर्जन है। ठीक है जी। और ये मूवमेंट हो रही है सब टेलर जॉइंट पे, और जो कंबाइंड रोटेटरी मूवमेंट है दैट इज सरकमडक्शन। ठीक है जी। इसमें कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो जरूर पूछ लें, अदरवाइज वी मूव ऑन टू दी MCQs discussion। एक क्वेश्चन ये पूछना था, आपने स्लो और फास्ट मसल फाइबर्स का बताया ना, जी। तो वो तकरीबन सारे स्केलेटल मसल्स में सेम ही मतलब अमाउंट में होंगे, या कुछ ऐसे होंगे जहाँ पे स्लो मसल फाइबर ज्यादा
इनकी थोड़ी बहुत प्रोपोर्शन आपस में चेंज हो सकती है, लेकिन दोनों तरह की फाइबर्स हर मसल में होंगे। जो उसकी सुपरफिशियल लेयर है उसमें फास्ट फाइबर्स हैं और जो डीप है वो स्लो फाइबर्स हैं।